السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu Rabbi la nushriku bihi shay'a. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن۔ تلاوت ہوگی آیت 25 سے۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ Kindly share the screen، شمیم۔ چلے تو پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الرحمن۔ الرحمن بڑا مہربان۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانیاں ہم نے دیکھی۔ پریویس کلاس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے دو سمندروں کو جو ساتھ ساتھ بہتے بھی ہیں لیکن کیا نہیں کرتے، وہ ملتے بھی ہیں، وہ بہتے بھی ہیں، وہ ملتے بھی ہیں، پر کیا نہیں کرتے وہ سمندر؟ کیا نہیں کرتے وہ سمندر؟ حد سے زیادہ نہیں بڑھتے۔ یس، آیت 20 میں اللہ نے فرمایا لا یبغیان، نہیں وہ دونوں بغی کرتے، بغاوت کرتے۔ ابھی سمندر کا نیچر کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے، isn't it؟ تو اگر دو سمندر اس طرح سے آ کر ٹکرا رہے ہیں آپس میں، تو کین یو امیجن ٹو سیز ٹو بی لائک ٹو آرمیز، جو دو لشکر ہوتے ہیں دشمنوں کے، اور وہ جب آپس میں بھیڑتے ہیں تو تب کیا کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں حد سے آگے نہیں بڑھنا؟ لیکن یہ جو سمندر ہے وہ ان لشکروں سے زیادہ پاورفل ہے یا نہیں؟ کیا سمندر
का पावर, the sea power, is stronger than any stronger army or not? جی باجی सबसे ज्यादा ताकतवर है पानी. सबसे ज्यादा ताकतवर है, और इसका सबूत हमको कुरान में भी मिलता है कि कौन से लश्कर को समंदर ने गर्क कर दिया था? बाजी मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी फौज, सॉरी फिरौन की पूरी फौज को समुंदर ने गर्क कर दिया था. वेरी गुड. इस पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल जिसको माना जाता है, था और है, इतना पावरफुल वो फिरौन और उसकी कौम, उसको गर्क कर गया था ये समंदर. लेकिन कैसे? अल्लाह के हुक्म से. ठीक है, ऐसे हर रोज नहीं होता है. हर रोज होता है कि ऐसे कि किसी ने पानी में लकड़ी मारी, पानी फट गया, उसमें से आगे निकल गए, फिर समंदर, फिर पीछे दुश्मनों का लश्कर आया तो समंदर फिर से मिल गया और वो सारा लश्कर उसमें डूब गया. ऐसा रोज होता है सीन? नहीं. हाँ, ये कब होता है? सिर्फ अल्लाह के हुक्म से. रोज तो समंदर का काम क्या है कि वो अपने हद से आगे ना बढ़े. जब अल्लाह ताला उसको हुक्म देते हैं तो वो अपने हद से आगे निकलता भी है. तूफान भी आते हैं समंदर में, isn't it? बड़ी बड़ी वेव्स. और ये तूफान कब आया था? एक तूफान और भी आया था समंदर में. वो कौन सा था? वो कब था? नूह कुरान में हम अलैहिस्सलाम. पढ़ चुके. हाँ, वेरी गुड. नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया, और यहाँ पर भी कश्ती का जिक्र है. इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं कि इसी समंदर को जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो उसमें ऐसा तूफान आया. लेकिन इस तूफान के बावजूद एक कश्ती अल्लाह के हुक्म से उसमें नहीं डूबी, और वो थी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बनाई थी. तो इसी पानी में अल्लाह जिसे चाहे उसे डुबो दे, और इसी पानी में अल्लाह जिसे चाहे उसे बचा ले. तो फिर ये पावर समंदर का पावर नजर आ रहा है या अल्लाह का? अल्लाह का. एग्जैक्टली. तो हमें लेसन तो यही लेना है. अभी इसी में अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि देखो कि इस समंदर में आपको मोती और जवाहरात, जेम्स मिलते हैं. ये कहाँ मिलते हैं? समंदर के ऊपर या समंदर के नीचे, अंदर, बेस में? कहाँ मिलते हैं? बेस में, नीचे, कॉरल्स एंड ऑल. और कितना साइज होता है ये मोतियों का और जेम्स का, और वेट कितना होता है इसका? लाइट होते. बहुत लाइट, छोटे से, हल्के से. बराबर. तो वो अल्लाह ने कहाँ रख दिए हैं? समंदर के बिल्कुल बेस में डुबा के रखे हैं. और आगे फरमाया आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ही के लिए है वो बड़ी बड़ी कश्तियां जो ऊपर पहाड़ों के जैसी नजर आती है, और उन पहाड़ों के जितनी, इतनी भारी और इतनी बड़ी, ह्यूज शिप्स, वेसल्स, उनको अल्लाह ताला पानी पर तैरा देते हैं. They float upon the water in spite of all the weight and the huge size. अल्लाह के हुक्म से. अब can you see the contrast? Can you see the contrast? कि एक है इतना भारी, उसको अल्लाह ताला तैरा रहे हैं ऊपर, क्योंकि वो हमारे लिए जिंदगी का जरिया है. उस जहाज में हजारों लाखों लोग, इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. तो अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी आसान की है और हमें तैराता है. और वो मोती हर एक को नहीं मिलते. वो मोती तो बहुत खास होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत कम होते हैं, वजन कुछ भी नहीं, लेकिन प्रेशियस. उनको अल्लाह ने समंदर के तह में कैसे पहुंचा दिया? हालांकि फ्लोट उनको होना चाहिए
اور غرق کون ہو جانا چاہیے؟ وہ بڑے بڑے شپس. لیکن یہ ہے اللہ کی قدرت. اب اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے انسان اور اے جنات اب بتاؤ اللہ کی کون کون سی نعمت کا تم انکار کرو. ذرا سوچو تو صحیح، ذرا دماغ تو لگاؤ، ذرا آنکھیں تو کھولو. سبحان اللہ. Isn't it beautiful؟ جب تک ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں تو بس ہم صرف گنگنا کے، رٹ رٹا کے، پڑھا کے آگے بڑھ جاتے ہیں. Isn't it؟ Now اب آگے کیا؟ اب آگے کیا؟ آگے بڑھتے ہیں آیت 26 پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب آگے فرما رہے، یہ سب تو ہو گئی دنیا کی زندگی، مزے مزے کر رہے ہو، گھوم پھر رہے ہو، کبھی جہاز میں، کبھی ایروپلین میں، کبھی روڈ پر، کبھی تم کسی کے یہاں شادی ہو رہی ہے، کسی کے یہاں پارٹی ہو رہی ہے، کھا رہے ہو، پی رہے ہو. اللہ نے تمہارے لیے میوے اور فروٹس اور ہر چیز، دن رات آ رہے جا رہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اپنی لائف تم آرام سے گزار رہے ہو اللہ کی رحمتوں کے ساتھ. پھر آگے کیا؟ پھر آگے ایک دن آئے گا. اس دن کیا ہوگا؟ 26 میں اللہ نے فرمایا کلو، ہر چیز، سب کے سب، من جو، علیہا اس زمین پر ہے. ہاں کس کے لیے آیا؟ زمین کے لیے. سب کے سب جو اس زمین پر ہے. فان فان میں کیا ورڈ ملتا ہے ہم کو؟ فنا ہونے والا ہے. فنا یعنی سب کچھ ختم ہونے والا ہے. یہ جو دنیا میں جو کچھ بھی ہے، کیا کیا ہے دنیا میں؟ انسان، جنات، برڈز، اینیملز، آل دا لیونگ بینگس. اس کے بعد ماؤنٹینس، اسکائز، ارتھ، یہ سمندر، یہ مچھلیاں، یہ سورج، چاند، ستارے، دنیا بھر کا خزانہ، موتی، ہیرے، ڈائمنڈز، پیسہ، تمہارے گھر، تمہارے کپڑے، تمہاری چیزیں، تمہارا نام، تمہارا نشان، تمہاری شان و شوکت. Everything is going to come to an end. فان، سب کچھ فانی ہے. ہر چیز کی کیا ہے؟ ایکسپائری ڈیٹ ہے. اور ایک دن سب کچھ فنا ہو جائے گا. That means یہ دنیا کیا ہے؟ ٹیمپرری. Everything will come to an end. ایک تو کب ہوگا سب ختم؟ میرے لیے جب میری موت آئے گی، میرے لیے سب کچھ ختم. اگر میرے بعد دنیا ختم نہیں ہونے والی، بٹ میرے لیے میری زندگی ختم تو میری سانسیں ختم، تو میرا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، میرے رشتہ داریاں، یہ دنیا کی میری زندگی ختم ہو گئی کہ نہیں؟ ویسے ہر ایک کی ختم ہوگی. اور پھر قیامت کے دن جتنے بھی باقی ہیں ان سب کی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. پھر کیا بچے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے 27 میں وَيَبْقَى، وہ یعنی کیا؟ اور. یبقا میں کیا ورڈ ملتا ہے؟ باقی رہے گا. کیا باقی رہے گا؟ وجہ، چہرہ. باقی رہے گا چہرہ، پہچان. صرف کس کی پہچان باقی رہے گی؟ ربک، آپ کے رب کی. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا، صرف آپ کے رب کا وجود باقی رہے گا. اور وہ کیسا ہے؟
आपका रब और उसकी पहचान और उसका चेहरा कैसा है, जुल जलाली वल इकराम, बड़े जलाल वाला, फुल ऑफ मैजेस्टी, बुजुर्गी वाला, मैजेस्टिक, मोस्ट मैजेस्टिक अल्लाह सुब्हानहू ताला, वल इकराम, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा इकराम वाला, द मोस्ट ऑनरेबल, अल्लाह सुब्हानहू ताला की जात के सिवा और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, फुल स्टॉप, ओवर, खत्म। इस सूरा के शुरू में अल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने अपनी रहमत से इंसान को बनाया, जिन्नात को बनाया, जमीन बनाई, आसमान बनाया, ये सब कुछ बनाया, इतना सब कुछ दुनिया किसके लिए, हमारे लिए। और फिर एक दिन ये सब की एक्सपायरी डेट और एवरीथिंग विल कम टू अ फुल स्टॉप, ओवर, खत्म। फिर जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स हम लोग सब खत्म होने वाले हैं। फिर किस चीज के पीछे दौड़ लगाए हुए हैं, फिर कहाँ हमारी नजर है, isn't it? और बाकी रहने वाली जात तो सिर्फ एक है। अब देखिए दुनिया में भी अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हो, सना, whenever you go for shopping, तो आप कैसी चीज पसंद करते हो कि जो सबसे ड्यूरेबल भी, हाँ बोलो। सबसे ज्यादा ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग and very good looking, everything in every matter should be perfect. I check for that. हाँ, हम लोग देखते हैं, इट शुड बी ब्यूटिफुल, इट शुड बी यूजफुल एंड इट शुड बी ड्यूरेबल, बराबर, कि जी। वो, हाँ, कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, बाकी रहे, मुझे बहुत लंबे समय तक वो चीज मेरे काम आए और खूबसूरत भी हो और यूजफुल भी हो। तो ये हम दुनिया में देखते हैं कि नहीं देखते, हर चीज। लेकिन क्या कोई चीज हमेशा हमेशा हमारे लिए बाकी रहती है? आप कितनी देख के लो, नहीं, कितना ही पैसा आप डालो, कितने आप होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, शॉपिंग में बहुत स्मार्ट हो, लेकिन क्या ऐसी कोई चीज होती है जो हमेशा 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 काम आती है? नहीं, ये तो दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। कभी कभी वो चीज रह जाती है और इंसान मर जाता है। इंसान उसको यूज करने के काबिल नहीं रह पाता। कभी कभी ये भी होता है कि समझो मैंने कोई चीज खरीदी बहुत पैसे देके, फॉर एग्जाम्पल आपने एक BMW खरीदी, एक कार, या आपने एक लेटेस्ट मोबाइल फोन खरीदा, इतने पैसे देके, ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए देके। अभी हर एक उसको तारीफ कर रहा है। अभी एक साल के बाद भी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है ना, किसको पता है कि अब मेरी ये चीज 1 साल पुरानी हो गई, है ना? फिर क्या आपकी नजर में उसकी वैल्यू वही रहती है? आप बोलते नहीं, ये तो अभी 1 साल पुरानी हो गई। किसी को पता हो या ना हो, आपको तो पता है। वैसे ये दुनिया ऐसे ही पुरानी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला की जात वो जुल जलाली वल इकराम है, हमेशा से थे और हमेशा बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की, वो मौत और वफात से पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ किया करते थे। मुझे लगता है कि हम लोग सब सुबह शाम ये दुआ करते हैं। देखिए मैं दुआ पढ़ती हूँ, ये वाली दुआ आप लोग भी करते हो ना, ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका नस्तगीसु अस्लिह ली लना शअनना कुल्लहु वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत आइन वला इला अहदिम मिन खल्किका।
اس کا میننگ پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو. بیوٹیفل دعا ہے. اے ہمیشہ یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ باقی رہنے والے، قائم رہنے والے رب. اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے رب، اے جلال اور بزرگی والے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ہم تیری رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے تمام کام صرف تو ہی بنا سکتا ہے. تو اے ہمارے رب، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر، اور نہ ہی اپنے کسی مخلوق میں سے کسی کے حوالے ہم کو کر. یہ بیوٹیفل دعا ہے الحمدللہ. یہ اس لیے کہ if anything is permanent, that is only Allah subhanahu wa ta'ala. تو یا اللہ ہمیں ٹیمپرری چیزوں کے حوالے نہ چھوڑ، تو پرماننٹ ذات ہے نا. تو پورا توکل، پورا بھروسہ ہم صرف تجھی پر کرتے ہیں. یہ آپ لوگ کو ہوم ورک دیتی ہوں، ذرا آپ لوگ پلیز یاد سے کرنا اور مجھے ریمائنڈ کرنا. تھرسڈے کے دن آپ کو سرچ کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ نام ذوالجلالی والاکرام. یہ آپ کو اس کا ہوم ورک کرنا ہے کہ ذوالجلالی والاکرام یہ اللہ کے کون سے نام ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے. ان کو اسم اعظم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اسم اعظم. میں نے آپ کو نام دے دیا. ابھی کیوں اسم اعظم کہا جاتا ہے پلیز فائنڈ آؤٹ. اوکے، کون کون کرے گا یہ ہوم ورک؟ ویری نائس. انشاءاللہ تھوڑا سا میں آپ لوگ کو بتا دوں. ذل جلال والاکرام میں جلال ورڈ ہے اللہ کا اور اکرام. تو اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسا جلال ہے اللہ کے اندر کہ ہر ایک اللہ کی عزت کرتا ہے اور اس کی شان بیان کرتا ہے. اللہ کو کہنا نہیں پڑتا کہ تم میری عزت کرو یا تم میری شان بیان کرو، بیکاز اللہ ڈیزروز. تو انسان ہی کیا، جنات ہی کیا، پوری زمین اور آسمان اور تمام مخلوق اللہ کی عزت اور اس کی شان میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری. تو جب آپ کسی کی سچ میں عزت کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ دنیا میں بھی آپ کسی کی عزت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ جی باجی. جب کرتے ہیں کسی کی عزت تو کیسے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں؟ باجی اس ہاؤ کو ڈو جو یو شو اٹ؟ جو اس کو پسند ہے وہی کام کرتے باجی. جو اس کی ہر اوکے، بات مان کے باجی. ویری گڈ. آپ اس کی ہر بات مانتے، اس کی پسند کا خیال کرتے ہو، ہے نا، ان کی فکر کرتے ہو، ان کے آگے پیچھے گھومتے ہو جس کی آپ عزت کرتے ہو. Isn't it کنیز؟ ان کے آگے پیچھے گھومتے کہ نہیں جن کی عزت کرتے؟ جی ان کو یاد بھی کرتے، ہمیشہ اکثر یاد کرتے. ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کو یاد کرتے رہتے، آگے پیچھے گھومتے، جو وہ بولے جو وہ چاہے وہ سب کرتے ہیں. دیٹ مینس آپ ان کی عزت کر رہے ہو. اور جس کی آپ عزت کرتے ہو کبھی ایسا کرتے ہو کہ ان کی بات نہیں مانی، ان کی بات کو ٹال دیا، ان کی بات کو انسنی کر دیا؟ نہیں باجی، بات بھی مانتے، ان کی بڑائی بھی بیان کرتے. ویری گڈ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر جلال والا، عزت اور اکرام والا اور کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ کی تو ہم بات کو کیا کرتے ہیں، اتنا ٹیکن فار گرانٹیڈ. ہم مسلمان، ہم سمجھتے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی جو ہے ہمیں مسلمان بناتے ہیں. لیکن مسلمان بننے کے لیے اللہ کا ہر حکم ماننا کتنا ضروری ہے.
isn't it? अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमने देख लिया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें इस सूरा में अब कहाँ तक पहुंचा दिया कि हर जात क्या हो गई, फना हो गई। यानी ये कौन सा दिन आ गया? कयामत का। कयामत का दिन आ गया। वेरी गुड, वहां तक हम लोग पहुंच चुके। अब आगे भी अल्लाह ताला हमें बताने वाले हैं। अब इसके बाद लेकिन फिर से हमसे पूछते हैं कि तमाम तारीफें, तमाम इज्जत, जलाल, इकराम सब अल्लाह के लिए है। तो फिर 28 फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर ए जिन और इंस, बताओ अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का तुम इनकार करते हो। देखिए इस आयत का हर बार इसका टोन चेंज हो जाता है। जैसी आयत उसके मुताबिक क्वेश्चन, isn't it? आप किसी को मैसेज करते हो, अच्छा, अगर आपने सिर्फ इतना मैसेज किया अच्छा, तो ये अच्छा आप कितने टोन में बोल सकते हो? जरा अलग अलग टोन में बोल के बताओ। कनीज, कर सकती हो तुम? एक वर्ड है अच्छा, अब इसको अलग अलग टोन और अलग अलग मीनिंग में बोल के बता सकती हो? कोशिश करो। ठीक, कहते हैं अच्छा, कहते हैं, अच्छा अच्छा, ओके। एक कहते अच्छा, गुस्से में भी कहते हैं और इसमें भी कह सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, अपने मूड के हिसाब से हम अच्छा कह सकते हैं। एक ही वर्ड को कई तरीके से बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मूड। वेरी गुड। तो एक अच्छा होता है वेरी गुड, एक अच्छा होता है अच्छा यानी क्वेश्चन, एक अच्छा में सरप्राइज भी होता है, एक अच्छा में शॉकिंग भी होता है, एक अच्छा मुझे सिखाएगी। तो इस तरीके से एक ही वर्ड है लेकिन एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे, और एक्सप्रेशन और हालात के मुताबिक उसका मीनिंग भी चेंज हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू ताला मक्के के मुशरिकों से बात कर रहे हैं और उनसे गुस्सा है या बहुत राजी है? गुस्सा है। गुस्सा है। हमने शुरू में ही देख लिए थे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला तो बहुत नाराज थे। क्यों नाराज थे मक्के के मुशरिकों से? जल्दी बताओ। क्यों नाराज थे? अभी अभी हमने फिरौन का जिक्र सुने ना, तो पूरी दुनिया में फिरौन का नाम तभी भी था और अभी भी है। इतना वो पावरफुल बादशाह था। और ये मक्के के लोगों का क्या था भाई सीन? कौन, क्या इनके पास कोई बादशाह थी? कोई इनके पास पावर था? कोई इनके पास फौज थी? क्या इन्होंने बड़े 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 महल तामीर किए थे? नथिंग। रेत में, सैंड में, डेजर्ट में रहने वाले ये लोग, इनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन अकड़ रहे थे। कितनी अकड़ थी। तो अल्लाह ताला फरमा रही है कि अल्लाह चाहे तो वो फिरौन को भी गर्क कर दे। तो ए मक्का वाले, तुम लोग क्या चीज हो? किस चीज पे इतना अकड़ते हो? और अपने उस रब जो कैसा है, जुल जलाल वल इकराम, अपने इस रब को नहीं मानते, उसके साथ शिर्क करते हो। इतनी नेमतें जो उसने तुमको दी हुई है ना, क्या था मक्का वालों के पास? कौन सी नेमतें थी? बताइए जल्दी। बाजी काबा उनके पास अंडर में था, जमजम का पानी। वेरी गुड। आप उनके पास काबा था, राइट, अल्लाह का घर, उसकी कुंजियां उनके पास थी। वेरी गुड। सेकंड, इसने कहा कि जमजम का कुआं उनके पास था। वेरी गुड। दो चीजें बिल्कुल सही। इसके अलावा क्या था उनके पास? बाजी वो लोग सेंटर ऑफ सब सारा ट्रेड वहां होता था, वो क्यों होता था? वो काबे की वजह से ही क्योंकि होता काबा था। की वजह से पूरी सब तरफ के लोग वहां आते थे और ट्रेड का सेंटर था। एग्जैक्टली। तो वो काबे की वजह से ही था ना, उसके अलावा कुछ और था क्या उनके पास? और कुछ भी नहीं था उनके पास, समझे?
ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جو گنتی کی چند تمہارے پاس نعمتیں ہیں نا، تو ابھی سورہ رحمان کی ساری نعمتیں اللہ نے گنوا دی. ہمارے پاس تو ہر طرح کے فروٹس ہے، ان کے پاس صرف کھجور. سمجھ آ رہی ہے بات؟ فرعون کے پاس ہر طرح کا مال اور بادشاہت تھی، ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کعبہ بھی اللہ نے ان کو دیا، زمزم بھی اللہ نے ان کو دیا. اگر اللہ چاہے اور زمزم کے کنویں کو سکھا دے تو بتاؤ پانی بھی کہاں سے پیو گے؟ وہاں پانی بھی برستا نہیں تھا. Isn't it؟ تو پھر اللہ کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جنو انس؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کو پتا ہے ایک بہت اچھی سٹوری بتائی بردر نعمان علی خان نے. کہتے ہیں کہ اگر سمجھو کوئی مالک ہے اور اس کے پاس سمجھو ایک ڈاگ ہے، ڈاگ پیٹ ڈاگ، کتا ہے اس کا، جو اس کا پالتو کتا ہے. پالتو کتے کا کیا کام ہوتا ہے؟ پاسرز بائی کو بھوکنا. ہاں، یعنی حفاظت، حفاظت کرنا. سیکیورٹی. ویری گڈ، سیکیورٹی کے لیے رکھا گیا. اگر وہ پالتو ڈاگ، دیکھیے اسٹوری غور سے سنیے، میں پوچھوں گی آپ سے، اگر وہ پالتو اس کا ڈاگ مالک کا، وہ ابھی اتنا سمارٹ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ اب اپنے ہی مالک پہ بھونکنے لگے. مالک گھر سے آئے تو یہ بھونکنے لگے، مالک اس کے آگے ہاتھ بڑھائے تو یہ مالک کے ہاتھ کو کاٹنے دوڑے، تو پھر مالک کو کیا آئے گا؟ پیار آئے گا اس پہ یا غصہ آئے گا؟ غصہ آئے گا باجی. یس، آپ Obviously. اس کو یہ مکہ والوں سے ریلیٹ کرو، ٹھیک ہے؟ ابھی پھر وہ مالک کیا کرے گا اس ڈاگ کو؟ وہ مالک اس کو باندھ دے گا، ہے نا؟ دنیا کا کوئی بھی مالک ہو وہ اس کو باندھ دے گا، اور کیا کرے گا پتا ہے؟ 4 دن تک اس کو بھوکا پیاسا چھوڑ دے گا، دھوپ میں باندھ کے. دھوپ میں باندھ کے رکھا ہے یعنی اس کی آزادی ختم، نہ اس کو کھانا دے رہا ہے نہ پانی دے رہا ہے. اب 4 دن میں وہ ڈاگ کی حالت کیا ہو جائے گی؟ بغیر کھانا پینا، بغیر چھاؤ کے وہ تو نڈھال ہو جائے گا. اب اس کی آ گئی عقل ٹھکانے. ابھی پھر جائے گا مالک اس کے پاس، تو وہ کیسا بیٹھا ہے؟ ابھی ساری اکڑ اس کی ختم، برابر؟ ساری اکڑ ختم ہو گئی نا اس کی، ابھی بھونکنے کی بھی طاقت نہیں ہے نہ کاٹنے کی. اب تو وہ ضرورت مند ہے. تو اب اگر وہ مالک اس کو اپنے ہاتھ سے بھی پانی پلائے گا نا تو چپ چاپ پی لے گا اور اپنی منڈی نیچے ڈال دے گا، جھکا دے گا. تو ایسا دنیا کا مالک تو ایسا کر سکتا ہے، برابر؟ ابھی کین یو ریلیٹ اٹ ود دا اسٹوری آف مکے کے مشرک؟ جی باجی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کبھی بھی. آپ دیکھیے کہ جو اللہ کا نام لیتا ہے اس کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، اور جو نہیں لیتا کیا اس کو نہیں کھلا رہا اللہ؟ ان کو فروٹس نہیں ملتے، ان کو آکسیجن نہیں ملتا؟ ملتا کہ نہیں ملتا؟ سب کو ملتا باجی. تو یہ ہے الرحمن کی صفت، یہ ہے ذوالجلالی والاکرام کی صفت. الحمدللہ. ابھی آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، اللہ کے پیارے رسول ہے، بالکل اس موتی کی طرح جو سمندر کے گہرائی میں وہ موتی، وہ پرل جو چھپا کر رکھا ہوا ہوتا ہے، پریشیس، ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پریشیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بالکل ایک موتی کی طرح ہے، ان کو ان مکہ والوں کے پاس بھیجا. تو ان لوگوں نے کیا ان کی قدر کی؟ اس موتی کی، اس ہیرے کی، اس جیم کی قدر کی؟ نہیں کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تھوڑا ٹائم ان کو دیا. جس نے مانا سو مانا، جس نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس موتی کو
वहां पर पहुंचा दिया जहां पर उस मोती की कदर हुई। कहाँ पहुंचा दिया? मदीना। मदीना। मदीना शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे हाथों में, हम मक्के मक्के वालों की बात कर रहे हैं, मुशरिकों की बात कर रहे हैं। आप और मैं तो मुशरिक नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन, वी हैव टू वर्क अपॉन इट। आपके और मेरे हाथ में कौन सा मोती है अभी इस वक्त? कुरान। अल्लाह का कलाम। कुरान। अगर इसकी मैं और आप कदर ना करें, इसकी वैल्यू ना करें, इसका हक अदा ना करें, तो क्या समझते हैं? टेकन फॉर ग्रांटेड? नो, नेवर। अल्लाह सुब्हानहू ताला तो इतना रहमान और रहीम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब यही मक्के के मुशरिकों ने हमला किया, है ना, गज़वे बदर की बात ले लो, तो ये दुश्मन, आप सोचो ना, दुश्मन आ रहा है सामने से, और इस तरफ मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 313 सहाबी ओनली, और वहां हजारों का लश्कर है, एंड दे हैव वेपन्स। लेकिन क्या अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उस मालिक की तरह किया कि उन कुत्तों को भूखा प्यासा छोड़ दिया? क्या ऐसा किया? नहीं। उन लोग को खाना भी मिल रहा था, ऑक्सीजन भी दे रहे थे, उनकी सांसें भी चल रही थी। अल्लाह ताला चाहे तो एक सेकंड में सबको गिरा दे, हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला हर एक को क्या देते हैं? मौका, चांस। कब तक दिया हुआ है अल्लाह ने मौका हम सबको? अपनी मौत तक के। ये जो अभी आयत आई, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, तो खत्म तो होगा ही, कुछ बाकी नहीं रहने वाला है। तो खत्म होने से पहले किस चीज का, मौके का फायदा उठाना है मुझे और आपको? बताइए। अल्लाह बात। और रसूल की इताअत करें हम, जैसे करनी चाहिए। वेरी गुड। और ये कुरान जो हमारे हाथों में है, इससे हम मैक्सिमम फायदा उठाए। ये जो सांसें चल रही है ना, जिंदगी, यहाँ देखिए क्या बात हुई, फना हो जाएगी हर चीज, यानी आपकी सांसें खत्म हो जाएगी, योर टाइम विल बी अप। तो हम वक्त की कदर करते हैं क्या? कहाँ है हमारे पास वक्त की कदर? कब ये वक्त हमारा खत्म हो जाए, फुल स्टॉप हो जाए, हमें नहीं पता है। तो मुझे और आपको फिर अल्लाह ने जो मौका दिया है कि मेरी एक्सपायरी से पहले मैं वक्त का भी फायदा उठा लूं, हर नेमत का फायदा उठा लूं, अल्लाह सुब्हानहू ताला से अपना कनेक्शन जोड़ लूं, पुराने गुनाहों की माफी कर लूं, तौबा कर लूं कि अल्लाह जो हो गया पीछे उसे तू माफ भी कर दे, अब मैं तौबा कर रही हूँ, तो तू मुझे तौफीक भी अता कर कि आगे मैं फिर से ऐसे गुनाह ना करूं। शिर्क मैंने और आपने भी कम नहीं किया है, कुफ्र मैंने और आपने भी कम नहीं किया है, झूठ मैंने और आपने भी कम नहीं बोला है। जिसकी गीबत की है वो भी फना होने वाला है, और गीबत करने वाला भी खत्म होने वाला है। जिस पे आप जलते हो वो भी खत्म होने वाला है, आप भी खत्म होने वाले हो। और जिस चीज के लिए जल रहे हो ना, वो चीज यहाँ के यहाँ पड़ी रह जाएगी, तो फिर वो चीज तो यही रह जाएगी, फिर बाकी क्या रहेगा? अगर मैंने जलन की है किसी पर, किसी नेमत की वजह से, तो वो इंसान भी मर गया, मैं भी मर गई, वो चीज भी यहाँ रह गई, लेकिन बाकी क्या रह जाएगा? बाकी क्या रह जाएगा मेरे साथ? अमाल। तेरे अमाल। वेरी गुड, मेरे अमाल। तो फिर हमें क्या समेटने हैं जल्दी जल्दी? नेक अमाल, और बुरे अमाल जो कर चुके हैं उसकी तौबा। देखो मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलना चाहिए ना। एक मुसलमान जो है
उसको तो टाइम ही नहीं मिलना चाहिए. मैं आप लोगों को एक बहुत ब्यूटीफुल कोट शेयर करती हूँ, आज ही मुझे मिला है, एंड इट इज सो अमेजिंग. कैन यू रीड दिस प्लीज, चान आंटी? जी हाँ. It's not hadith, na? No, no, no. Okay. All humans are dead except those who have knowledge, and all those who have knowledge are asleep, except those who do good deeds, and those who do good deeds are deceived, except those who are sincere, and those who are sincere are always in a state of worry. सुबहान अल्लाह. अभी देखिए क्या है ये, कि हर इंसान मुर्दा है. सूर्य असर हम लोग पढ़ चुके कि हर इंसान खसारे में है, नुकसान में. तो ये अल्लाह का नहीं है, ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि का कॉल है. इट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि. वो क्या कहते हैं कि हर इंसान मुर्दा है सिवाय उसके जिसके पास इल्म हो, नॉलेज हो. हर इंसान मुर्दा है सिवाय उसके जिसके पास नॉलेज हो, इल्म हो. और हर वो शख्स जिसके पास इल्म है वो सब सोए हुए. हर वो इंसान जिनके पास इल्म भी है, इल्म होने के बावजूद वो सोए हुए हैं, सिवाय उनके कि उनके पास इल्म है और वो क्या करते हैं, उस इल्म से नेक अमल भी करते हैं. कौन नहीं सोए हुए? जो अपने इल्म के साथ नेक अमल भी करते हैं. लेकिन हर वो नेक बंदा जो नेक अमल भी कर रहा है वो भी धोखे में है. हर वो बंदा जो समझता है कि मैं नेक अमल कर रहा हूं वो भी धोखे में है. कैसे धोखे में? सिवाय उसके जो खालिस नियत से नेक अमल करता हो, दोज हु आर सिंसियर. और जो खालिस नियत से नेक अमल करते हैं सिंसियरिटी के साथ, वो हमेशा फिक्रमंद रहते. वो कैसे रहते? हमेशा फिक्रमंद. हर घड़ी एक सेकंड उनका खाली नहीं रहता, वो कभी आराम से नहीं बैठते. दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. अब ये भी करना बाकी है, वो भी करना है, ये भी करना है. हम लोग तो सिर्फ समझते नमाज, रोजा, ज़कात, लेकिन इसके अलावा वो नेक अमल की भी तलाश और डिसिप्लिन के साथ. और सब हो गया तो अभी तौबा भी करनी है, माफी भी मांगनी है, जिक्र भी करना है. घर में खाना भी बनाना है तो चलो खाना बनाते बनाते मैं जिक्र करती रहूं. और फिर बर्तन धोने हैं तो बर्तन धोते धोते मैं अस्तगफार पढ़ती रहूं. और फिर बच्चों के साथ वक्त गुजार रहे हैं तो उनको रेडी कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, तभी मैं उनको अच्छी अच्छी बातें भी बताती रहूं. दैट मीन्स आई कीप ऑन शेयरिंग. और मैं अपनी पड़ोसन के साथ मार्केट जाती हूँ सब्जी खरीदने के लिए, तो फिर मैं क्या करूं, उस वक्त फायदा उठाऊं, उससे भी सब नेकी की बात करती रहूं. और जाते वक्त मुझे पता है कि रास्ते में कोई तो मुझे मिलेगा जो जरूरतमंद होगा, तो मैं उसके लिए अपने साथ सदका भी लेते चलूं. मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज है तो मैं उसको भी दे दूं. यानी एवरी सेकंड इज कंस्ट्रक्टिव. कैसा लगा आप लोग को ये कॉल? हाउ ब्यूटिफुल एंड हाउ इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग. समझ आया सबको? जी हाँ. वेरी ब्यूटीफुल बाजी, वेरी ब्यूटीफुल. अल्हम्दुलिल्लाह. तो इंशाल्लाह इसके बारे में आप रिफ्लेक्शंस देना बाय द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह. अभी हम लोग नेक्स्ट आयत पर चलते हैं, आयत नंबर 29. अब अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? आर यू क्यूरियस नाउ टू नो कि नेक्स्ट आयत में क्या आ रहा है? नेक्स्ट आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते 29, यसअलुहु. यसअलुहु, इसमें क्या वर्ड मिलता है आपको? सवाल. सवाल.
सवाल मांगने को भी कहते हैं, दुआ को भी कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मांगता है उससे, सवाल करता है उससे। हु किसके लिए बताओ? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला के लिए। प्लीज हु को सर्कल करके लिख लीजिए कि मांगता है, सवाल करता है, दुआ करता है अल्लाह से। कौन? मन, हर एक, जो कोई, फिस समावाती वल अर्द, जो कुछ और जो कोई है आसमानों और जमीन के बीच। ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीबडी, वो अल्लाह से दुआ भी करता है, सवाल भी करता है, मांगता भी है। कुल्ला। अच्छा, यहाँ तक पहले देख लेते हैं। तो क्या ये बात आपको सही लगती है? अभी ऐसे तो दुनिया में बहुत से हैं कि जो अल्लाह से नहीं मांगते, वो नाउजुबिल्ला जीसस से मांगते हैं, नाउजुबिल्ला बुतों से मांगते हैं, और दरगाहों पे जाके मांगते हैं, और इधर मांगते हैं और उधर मांगते हैं। पर अल्लाह ने फरमाया कि जमीन और आसमान में हर चीज अल्लाह से मांगती है। अभी एथियस्ट है तो वो तो किसी से भी नहीं मांगते। तो फिर इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? जल्दी से प्लीज, बाजी डोंट वेस्ट टाइम। नेचर में हम देखते हैं बाजी कि सब ओके, फरमा आप बरदार नेचर है। की बात कर। No, this is not about फरमा बरदारी. This is about asking, दुआ, सवाल, मांगना. Kanis, you want to try? Nobody? ये सवाल मेरा सही था ना कि अगर हर चीज अल्लाह से मांगती है तो बहुत सारे तो है कि गैर अल्लाह से मांगते हैं, बहुत सारे हैं कि किसी से नहीं मांगते। तो फिर अल्लाह ताला का ये स्टेटमेंट, वही आंटी आप बोले जल्दी। हाँ बाजी, ये अल्लाह ताला ने उनके दिलों को और उनके अक्लों पर ये डाल दिया, पहले ही बोल दिया ना, वो पत्थर। नहीं नहीं, देखिए अल्लाह ताला का स्टेटमेंट है कि हर चीज जमीन आसमान के बीच वो है अल्लाह से ही मांगती है, अल्लाह से ही सवाल करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, ये सुरैया कौन ट्राई? बाजी भले वो किसी से मांगते लेकिन पूरा तो अल्लाह ही करता ना, अल्लाह ही काट दी रहे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जवाब तो आयत नंबर 1 में मिल गया, अर रहमान। और अभी हमने पढ़े जुल जलाली वल इकराम। लेकिन इसका जवाब हमें ये मिलता है, इसका मतलब है कि दुनिया की कोई चीज, कोई शय ऐसी नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो। हर मखलूक डिपेंडेंट है अल्लाह पर। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई नहीं चाहिए मुझे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। बराबर? मैं बोलूंगी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कमा सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी, अकेली रहूंगी। देखो आप जरा, अगर आपकी आंखें दुखने लग जाए, सर में दर्द हो जाए, और जरा धड़कने आपकी तेज होने लगे, आपको ऐसा लगे कि पसीना छूट रहा है, मुझे तो हार्ट अटैक हो रहा है, तो किधर भागेगा इंसान? किधर भागेगा? बस आपको ये फील होना चाहिए कि मेरा सीने में दर्द हो रहा है, पसीना छूट रहा है, सीना पकड़ के किधर भागेंगे? बोलो। डॉक्टर के पास। हाँ, फिर कौन है इंडिपेंडेंट? नो बड़ी। तो अल्लाह ताला हमें वही बता रहे हैं कि चाहे मुझसे कोई मांगे या ना मांगे, कोई ईमान लाए या ना लाए, कोई कबूल करे या ना करे, कोई कितना भी अकड़े, कोई कितना भी तकब्बुर करे, ऐसी कोई जात नहीं है, ऐसी कोई मखलूक नहीं है दुनिया में कि वो अल्लाह पर डिपेंडेंट ना हो। सुभान अल्लाह। गॉट इट नाउ? अब आगे देखते हैं।
कुल्ल, और वो जात भी कैसी है अल्लाह सुब्हानहू ताला कि वो खुश होता है ना जब हम उससे मांगते हैं, तो वो बहुत खुश होता है। वो हम इंसानों के जैसा नहीं है कि हमसे कोई मांगे तो हमको गुस्सा आता है ना, हमसे कोई मांगे तो हमको गुस्सा आता है, हम हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला बहुत खुश होते हैं जब कोई अल्लाह से मांगता है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला किसी को खाली हाथ लौटाते हैं क्या? नहीं। किसी को नहीं। उसके मांगने पर राजी होता है, उसके मांगने पर उसे इबादत में शुमार कर लेता है, यानी दुआ इबादत का मगज है, और किसी न किसी तरह उसकी दुआ जरूर कबूल करता है। अगर अल्लाह ने चाहा तो उसी वक्त कबूल हो जाती है, अगर बाद में कबूल होती है थोड़ा टाइम के बाद, तो उसमें अल्लाह की मसलियत होती है। अगर कबूल नहीं होती तो उसके बदले क्या होता है? कोई बड़ी परेशानी को टाल देता है। वेरी गुड। और नहीं कबूल हुई तो कयामत के दिन क्या होगा उस दुआ के बदले? उसको क्या अजर होगा? मिलेगा। कितना अजर, यू कैन नॉट इमेजिन। फिर इंसान कहेगा काश कि मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती और यहाँ मीजान मेरा इसी से भर जाता। तो कभी दुआ मांगने में कंजूसी नहीं करो प्लीज। दुआ मांगते चलो, चलते फिरते उठते बैठते। क्या दुआ मांगनी है हमको चलते फिरते उठते बैठते? अल्लाह तू रहम कर, अल्लाह तू माफ कर। वेरी सिंपल वर्ड्स में बोलिए, अल्लाह तू रहम कर, अल्लाह तू माफ कर, अल्लाह तू रहम कर, अल्लाह तू माफ कर। और भी चाहते हो तो कहोगे अल्लाह तू हिदायत दे, अल्लाह तू आसान कर, अल्लाह तू आफियत में रख, अल्लाह तू दरगुजर फरमा, अल्लाह तू मगफिरत फरमा, अल्लाह तू राजी हो जा। पूरा दिन अल्लाह से बात करते रहे। ये सारी दुआएं हैं, और यह दुआएं हमारे लिए क्या बन जाएगी इंशाल्लाह कयामत के दिन? हो सकता है हमारे निजात का जरिया बन जाए इंशाअल्लाह। ओके, तो ये आधी आयत थी, अभी आधी आयत बाकी है। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? कुल्ल यौमिन, हर दिन। कुल्ला का मतलब क्या होता है? हर, एवरी। यौमिन यानी क्या? दिन। हर दिन, एवरी डे, हर दिन एवरी डे। हुआ, वो अल्लाह, हुआ किसके लिए आया है? अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए। हर दिन कैसा है अल्लाह? फी शान, फी शान, क्या मतलब होता है इसका? फी शान, एक नई शान में है। अल्लाह ताला हर दिन एक नई शान में है। हर रोज वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अलग 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 ले आता है। अल्लाह की शान हर दिन निराली है। अल्लाह सुब्हानहू ताला की नेमतें हर रोज निराली है। Isn't it? अल्लाह की मेहरबानियां हर रोज निराली है। कैसे? आप लोग जब एक दूसरे से मिलते हो तो एक दूसरे को पूछते हो आज क्या खबर, आज क्या नया? हाँ, पूछते हैं नहीं पूछते? चांद आंटी ऐसे क्वेश्चन, हाँ, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स what न्यू, news? व्हाट्स हैपनिंग टुडे, व्हाट इज द ब्रेकिंग न्यूज, आज की खबर क्या हुआ, आज का क्या है? तो ये है अल्लाह की शान कि हर रोज वो क्या करता है हमारे लिए। अब ये नया नया क्या होता है पता है? हर रोज एक नई सुबह है, हर रोज एक नई अपॉर्चुनिटी है। एक आज का दिन, आज के 24 घंटे अगर है मेरे नसीब में, तो आज का दिन मेरे लिए नया दिन है। कल का दिन बासी हो गया, पुराना हो गया। अभी आज के दिन में मैं क्या नया करूंगी, क्या कंस्ट्रक्टिव करूंगी, ये मुझे सोचना है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला हर रोज हम पर अपनी नई नई निराली बेहतरीन नेमतें अता करता है। अभी आप सोचोगे कि हर रोज तो बेहतरीन नहीं मिलती है,
कल मैं बहुत खुश थी, कल मैंने बहुत खाना खाई, आज मेरे पास खाना नहीं है, आज मैं खुश भी नहीं हूँ, आज मैं सैड हूँ, मेरा मूड खराब है, तो फिर ये निराली कैसे हुई? फिर ये बेहतरीन कैसे हुई? आज का दिन कैसे बेहतरीन हुआ कल से? फिर बाजी जिंदा हूँ, सांस ले रही हूँ, देख पा रही हूँ, ऐसी बहुत सारी नियामतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जिंदा हूँ, और कल जो नेमतें मैं एंजॉय कर रही थी ना, तो कल मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसका शुक्र अदा करूं। तो आज अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया कि मैं क्या करूं, उसका आज शुक्र अदा करूं। लेकिन हम लोग क्या करते? क्या करते? शिकवा करते हैं। हम लोग तो शिकायत करते हैं कि कल की पार्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो मेरी फ्रेंड मेरे से बात ही नहीं करी, और मैंने इतना अच्छा ड्रेस पहन के गई, कोई ने मेरी तारीफ ही नहीं की, और इन लोगों ने ना वो वाली कबाब बना के रखे थे, फ्राइड कबाब, बट आई डोंट लाइक फ्राइड कबाब, आई वांट ओनली बारबेक्यूड, और आई लाइक ग्रिल्ड कबाब, तो मैं खा नहीं पाई। और वो वेटर है ना, इस तरफ आ ही नहीं रहा था, मुझे इतनी प्यास लगी थी। उन लोग सब शरबत इतने वैरायटी में, फ्लेवर्स में सर्व कर रहे थे, बट वो वेटर मेरी तरफ आ ही नहीं रहा था। इतनी शिकायतें, ये तो बहुत कम है। अच्छा, इसके बाद कल की पार्टी की गीबत शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ने तो हमें मौका दिया आज कि कल तू भूल गई थी शुक्र अदा करना, चल आज शुक्र अदा कर दे। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, उसको सारा नेगेटिविटी में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, नेकियां कमाने के बदले गवा रही हूँ अपना वक्त भी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हर रोज न्यू अपॉर्चुनिटीज, मौसम भी अलग होता है हर रोज के, नहीं होता है? हर रोज मौसम अलग होता है, होता है कि सेम होता है? अलग अलग होता है। हर रोज मूड भी अलग होता है, हर रोज की नेमतें अलग होती है, हर रोज का नजारा अलग होता है, आसमान में देख लो, हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ नया होता है कि अभी आज क्या करना है अपने को, आज इधर जाना है, आज ये काम करना है, आज होमवर्क करना है, आज मुझे पढ़ाना है, आज मुझे पढ़ना है, आज मुझे नोट्स बनानी है। एवरी डे यू हैव एन एजेंडा फॉर योरसेल्फ और नॉट? यस, और ये एजेंडा तुमको कौन देता है भाई? अल्लाह सुभान ताला। तो है ना फिर अल्लाह की हर दिन एक नई शान, हर रोज कहीं पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना, कहीं पे एक नई जिंदगी शुरू हो रही है, कहीं पर मौत हो रही है, कहीं पर उम्मीद है, कहीं पर मेहनत है, कहीं पर ट्रांसफर हो रहा है, कहीं पे माइग्रेशन हो रहा है, कहीं पर नेकियां हो रही है, कहीं पे बदियां भी हो रही है, कहीं पे आजमाइशें आ रही है। Isn't every day a different day? और ये अल्लाह की रहमत है, वरना आप और मैं कितना बोर हो जाते सोचो दुनिया में। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन, यूजफुल बनाया है। अभी ये आपके और मेरे हाथ में है कि हम क्या करते हैं इस मौके का, अल्लाह की इस नेमत का हम कैसे भरपूर फायदा उठाएं, अल्लाह की फर्मा बरदारी करें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा कि हुजूर अल्लाह की शान क्या है? फरमाया गुनाहों को बख्शना। हदीस है, सुन लीजिए क्या क्या फरमाया। अल्लाह की शान क्या है? नंबर 1 गुनाहों को बख्शना। मेरे पीछे पीछे बोले चान आंटी, नंबर 1 गुनाहों को बख्शना। नंबर 1 गुनाहों को बख्शना। नंबर 2 दुखों को दूर करना। नंबर 2 दुखों को दूर करना। नंबर 3 लोगों की तरक्की करना। नंबर 3 लोगों की तरक्की करना। नंबर 4 उनको मंजिल पर पहुंचाना। नंबर 4 उनको मंजिल पर पहुंचाना। अल्हम्दुलिल्लाह,
اس کے اندر موسٹلی ہر چیز کور ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی دن کسی کو ہدایت دے دیتے ہیں, کسی دن کسی کو توفیق دے دیتے ہیں, کسی دن کسی سے اچھی دعا کروا لیتے ہیں, کبھی کسی سے اچھی نیکی کروا لیتے ہیں. الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی میں ہر روز اسی طرح ہم سے کیا کروائے, خوب نیک عمل کرواتے چلے اور ان میں ہمیں سینسیئر بھی کر دے, ہماری نیتوں کو بالکل خالص کر دے. ہم لوگ یہ دعا پڑھیں گے. بارک اسکرین پر ہے, آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اس کا مطلب ہے may اللہ bless me, کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. اینڈ یو, اور اللہ تم سب پر بھی اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے. کس کے ذریعے؟ تھرو دا گائیڈنس آف دس نوبل قرآن, قرآن کے ہدایت کے ذریعے. اینڈ مے اٹس ٹیچنگس اینڈ ریممبرنسز, اور اس کی کلمات اور اس کا ذکر جو ہے وہ کیا کرے, میرے اور آپ کے لیے بہت ہی مفید فائدہ مند ثابت ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.